Good morning everyone. A hearty welcome to each and every student who is present over there in our class. So students, in the previous session of our class we had studied about free fall, we had studied about the variation in the value of g according to the polar ends at the equator. Then we studied about the variation of the value of g at the surface of the earth at a particular height h or at the depth d. So after studying all these values of g, now we have to study about few equations because I think in the last lecture only we had correlated about the term of free fall, and we then correlated the term of free fall with relation of acceleration due to gravity. Then in terms of such condition we have to know about the Newton's laws of motion under the influence of acceleration due to gravity. What is the change in the Newton's laws of motion, or let us call that about the equations of motion. First of all, let us speak about the equations of motion. These equations of motion, when undergo the influence of gravity, what are the changes in between them? So our today's topic would be the equation of motion for a body moving under the acceleration due to gravity. Just a second, let me refill it. So what is our today's topic? Equation of motion for a body moving under gravity. Equation of motion for a body moving under gravity. Now this gravity, let me clear you, this gravity is not the gravitational force, it is the acceleration due to gravity, small g, let us call that small g. So what is the influence of the equation of motions what is the influence on equations of motion when they undergo acceleration due to gravity? Let us study. So first of all, there are two conditions. Which are the two conditions? The first thing is that when I am throwing the body in the upward direction, that is a different condition, and when the body comes in the downward direction, that is a different condition. As we all know that when we studied about free fall, at a free fall we had discussed that when the object goes at a certain height, when the force is applied, the object moves in the upward direction. When the object is moving in the upward direction, at that time the acceleration due to gravity is acting on it in the opposite direction of it. In which direction is it? In the opposite direction itself. But let us consider that when the body goes in the upward direction, then at a point height h, it is stable there. At a particular height it is stable. It means that there the initial velocity becomes 0, and then suddenly due to the free fall condition or due to the exerting downward force of acceleration due to gravity, the objects come in motion. That particular condition we have to describe first. The first condition, what is the first condition? Equations of motion for a freely falling body. So equation of motion, what is the first condition? For freely falling body. When the body is falling freely, just pay attention. Suppose when I am throwing this body upwards at a particular height h, here the body becomes stable. It means that our initial velocity is equal to 0. At that condition, when it comes in the downward direction, the acceleration due to gravity or the gravitational pull acts on it, and at that time the body is in motion. So what is the first equation? We have first equation, v is equal to u plus at. This is our general equation, okay. But now we all know that at a particular height h, u is equal to 0, then this equation becomes v is equal to, the value of u is 0 plus at. At means here acceleration is equal to the gravitational pull, or let us call the acceleration due to gravity g into t. So the final equation is equal to v is equal to gt. So this would be our new equation of motion when experiencing acceleration due to gravity for the freely falling body. Getting it? Now the second equation. What is the second equation? Simple. The second equation is S is equal to ut plus half at square.
Same thing, the value of initial velocity is 0, acceleration is g, so put the values 0 into t plus half, a की जगह पे g t square, 0 into t 0, इट मीन्स दैट ये कंप्लीट टर्म 0 हुआ, 0 प्लस दिस टर्म, ये टर्म रहेगा हाफ जी टी स्क्वेयर. Now the next third equation of motion, as we all know, what is the third equation? V square is equal to u square plus twice of as. अभी देखो यहाँ पे क्या क्या होता है हमारे पास. As we know the value of u, let us put v square is equal to initial velocity 0 plus twice of acceleration की जगह पे acceleration due to gravity रख देंगे. Now the term comes about s. We know that s means डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक है? फ्रॉम द सरफेस टू द पर्टिकुलर हाइट, करेक्ट. तो इस यस को क्या करूंगा मैं? माई डिस्प्लेसमेंट इज अप टू अ पर्टिकुलर हाइट एच, देयरफॉर यस, सिंस यस इज इक्वल टू एच, यहाँ पे एच आएगा, देन इक्वेशन बिकम्स वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एच. दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. This is the third equation of motion under acceleration due to gravity for a freely falling body. So this was the first case for freely falling body. Write it down first. Now let us study about the second case for the body which is moving in upward direction. जो body upward direction में move होता है उसके बारे में let us study about it now. So just write it down first. Note it down quickly. So now students, let us talk about the second condition when the body is thrown upward. जब surface से body ऊपर की ओर, मान लो this is the surface of the earth and from this surface when we are throwing the body in the upward direction, at that particular time with relating to the acceleration due to gravity, equation of motion क्या होता है, उस body का motion क्या होगा, let us calculate it. So our second condition or the second let us say the second part of this equation of motion for a body moving under gravity, that is for a body thrown upward, for a body thrown upward from the surface. Now simple है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है फिर हम लोगों के पास? V is equal to u plus at. अभी एट द सरफेस समथिंग देयर में भी इनिशियल वेलोसिटी u, तो u का वैल्यू हम चेंज नहीं करेंगे. बट एज वी ऑल नो दैट व्हेन वी आर थ्रोइंग दिस ऑब्जेक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन एक्ट हो रहा है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एक्ट हो रहा है. तो एग्जैक्टली इक्वल अमाउंट का फोर्स इस पे एक्ट होगा ताकि ये ऊपर जा सके. मतलब जो फोर्स इस पे एक्ट होगा और जो एक्सेलरेशन इसके ऊपर आएगा दैट वुड बी माइनस जी. वो क्या होगा? माइनस जी होगा. सो लेट अस कंसिडर a इज इक्वल टू माइनस जी ओवर देयर. तो इक्वेशन क्या मिलेगा हमें फिर? u प्लस a की वैल्यू माइनस जी इंटू टी. आफ्टर ऑल द इक्वेशन बिकम्स u माइनस जी टी. So this is the first equation of motion at the surface undergoing acceleration due to gravity. Then the second case second equation, as the second equation we know that s is equal to ut plus half at square. तो अभी ut plus half at square in the same manner the equation remains same as it is. यहाँ पे प्लस हाफ a की वैल्यू लेंगे हम माइनस जी टी स्क्वेयर. तो आफ्टर ऑल द इक्वेशन बिकम्स यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वेयर. एंड द थर्ड इक्वेशन इट सेल्फ, इट इज क्वाइट सिंपल नाउ. वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस. यहाँ पे हमने पीछे देखा था सिंस एस इज इक्वल टू एच एंड ए इज इक्वल टू माइनस जी, तो वैल्यू पुट कर लो. वी स्क्वेयर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर माइनस ट्वाइस ऑफ जी एच वुड बी योर फाइनल इक्वेशन. So these are the equations for the body which is thrown at the upward direction from the surface. From the surface of the earth, when the body is thrown in the upward direction, you will get these three equations. So in all equations of motion undergoing acceleration due to gravity g, we have got पहले 3 इक्वेशन देखे और अब हम 3 इक्वेशन देख रहे हैं. मतलब in all we discussed about the 6 equations. So write it down quickly.
So hoping that you all are clear with the concepts of these equations of motion. Now let us talk about mass and weight, because अभी आफ्टर ऑल जब ग्रेविटी एक्ट होती है मास के ऊपर तो तब जाके हमें वेट मिलता है. व्हाट आर द कोरिलेशंस, बिकॉज इसके बाद हमें पढ़ना होगा द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ और उसको कोरिलेटिंग ऑन द मून और ऑन अदर प्लैनेट्स. अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का मास मान लो या वेट, लेट अस से वेट मान लो x किलोग्राम है, तो अदर थिंग्स पे या अदर प्लैनेट्स पे लेट अस से एट डिफरेंट हाइट्स और एट मून क्या होगा, ये हमें लेटर ऑन स्टडी करना है. बट बिफोर गोइंग टू स्टडी दैट वी मस्ट बी क्लियर विद what is mass and what is weight. मास किसे कहते हैं एंड वेट किसे कहते हैं, वी शुड बी क्लियर विद इट, बिकॉज बहुत बार जंबल हो जाता है. एज वी ऑल नो मास भी हम लोग जो है तो लेट अस से दैट वी मेजर इट इन किलोग्राम्स, और जब हम वेट की भी बात करते हैं ओवरऑल में तो वेट को भी हम जनरली हम कहते हैं कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका वेट कितना है, तो एट द टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द मास इटसेल्फ, बिकॉज बेसिकली जब हम वेट की बात कर रहे हैं वेट इज़ डिफाइंड बाय द फोर्स, लेकिन जब हम मास की बात करते हैं तो मास इज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट ओवर देयर. लेट अस कॉल इट एज मास. अभी सबसे पहले हम मास को स्टडी करेंगे. तो व्हाट इज मास? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास. मास किसे कहेंगे हम? क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैं लिखता हूं यहां पे बताते बताते, क्वांटिटी ऑफ मैटर present in a body. Mass is the quantity of matter present in a body. So in simple manner मैं से ये भी कहूँगा कि नंबर ऑफ एटम्स का जो मेजरमेंट लेंगे हम, इन ऑल नंबर ऑफ एटम्स का सम करेंगे, उनका जो टोटल मेजर आएगा दैट मेजर इज आवर मास ऑफ द बॉडी. सो लेट अस आल्सो से दैट number of atoms present in a body when measured we get mass of body. जो भी एटम का मास हमें पता होता है कि जनरली एक एटम का कितना मास हो सकता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट फिर विद रिस्पेक्ट टू दैट एटम्स मास, उसमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट द मास ऑफ दैट बॉडी. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट दिस मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. हम मास को डिनोट किससे करते हैं? मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. लेट अस से दिस मास इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम. And when this mass is denoted by small m, on the other hand, the SI unit of mass is kg. SI unit of mass is kg. SI unit of mass is kg. Then itself, this mass is a scalar quantity because it has no direction. वहाँ पे क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है. मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट है, एक नंबर है. Therefore, it is a scalar quantity. Mass is a scalar quantity in itself. Then when we talk about mass, this mass does not depend on the size, shape or the state of the body. कोई बॉडी है, मान लो उस बॉडी के साइज पे, उस बॉडी के शेप पे या उस बॉडी के स्टेट ऑफ मैटर पे, इट डजंट डिपेंड ऑन दैट स्टेट ऑफ द बॉडी. मास इंडिपेंडेंट है. सो मास डज नॉट डिपेंड, यहाँ पे लिख देंगे हम mass does not depend on size, shape or state of body. Then the second thing, it is proportional to the quantity of matter. मतलब मैटर का क्वांटिटी जितना ज़्यादा उतना मास ज़्यादा होगा, मैटर का क्वांटिटी जितना लेस उतना मास कम होगा. इट मीन्स दैट इट इज प्रोपोर्शनल. यहाँ लिख देता हूँ मैं लिखे हाथ, इट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर. इट इज प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ मैटर. तो अभी मास तो हम लोगों का क्लियर हो गया कि मास को हम क्या कहेंगे. सो नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वैल्यू,
it is same everywhere. The value of mass is same everywhere. देखो मैं मास के बारे में बोल रहा हूँ, नॉट अबाउट वेट. अभी अगर मान लो यहाँ पे मैं एक कोई मास लेता हूँ, एक कोई मैटर लेता हूँ जिसका मास 1 kg है और उसी मैटर को मैं मून पे ले जाता हूँ, तो वहाँ पे भी उसका मास कितना होगा, 1 kg ही होगा. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेट. वेट कंप्लीटली अलग है, इसके बाद हमें देखना है. डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन मास एंड वेट. मास itself it is a scalar quantity और mass only depends upon the quantity of matter. mass मतलब क्या है, the total amount of matter or the total quantity of matter present in a body. तो उसमें जितने number of atoms हो गए over there in that body, उस number of atoms का हमें equivalent mass total mass gain कर calculate करना है, and that is the mass of that object we are talking. So these are the characteristics or these are the features of mass which we have discussed. अभी हमें इसके बाद weight देखना है, but before going to begin the weight, let me tell you that mass is the measure of inertia of an object. mass को हम क्या कहेंगे, inertia of an object. mass is the, अभी inertia आपको यहाँ पे नहीं है, 12th स्टैंडर्ड में होगा, बट अभी बस ध्यान में रखना है 11th और 10th वालों ने. mass is the measure of inertia. So this is overall about mass. Now let us talk about weight. So please write it down within a short period of time. 2 सेकंड के अंदर इसको लिख लो. So now let us talk about weight. अभी हम बात करेंगे weight की. What is weight, students? Weight असल में है क्या? Now let us say that force with which a body is अट्रैक्टेड बाय अर्थ. अभी हमें पता है कि एक फोर्स होता है जो बॉडी को अट्रैक्ट करता है अर्थ की ओर, एंड दैट फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ itself is called the weight. So let us call that weight of an object is defined as, or let us say weight is defined as, let us say the earth force which attracts the object. Weight is the force by which object is attracted to the earth. तो अभी इटसेल्फ कोई समझो, मान लो कि हमारे पास फोर्स का एक इक्वेशन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. लेकिन हमें पता है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी when we talk about it, this A is equal to G. तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, F is equal to mg. This force is, or the force by which object is attracted to the earth is the weight. So therefore W is equal to mg. Keep in mind, weight is nothing but our mass of the object into acceleration due to gravity exerting on it. अभी जब हमें पता है कि when gravity changes place to place, gravity क्या होती है, हर प्लेस पे चेंज होती है, therefore weight also changes place to place. So weight का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, it changes place to place with respect to acceleration due to gravity small g. स्मॉल g का वैल्यू जहां जहां चेंज होता है वहां वहां पे weight of the object itself changes. On the earth, weight of a body is equal to the force. On the earth, weight of the body is equal to the force by which object is attracted to the earth itself. So weight depends upon mass and gravity. Weight depends upon mass and ग्रेविटी. वेट किस किस पे डिपेंड करता है, मास और ग्रेविटी पे. तो मान लो अगर मैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास ऑफ मैटर बढ़ा देता हूं, वेट बढ़ेगा. मान लो मैं क्वांटिटी ऑफ मैटर डिक्रीज करता हूं तो वेट भी डिक्रीज होगा. मान लो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी एट सरफेस अलग है, एट हाइट अलग है, तो वेट एट सरफेस अलग होगा, वेट एट हाइट अलग होगा, वेट एट डेप्थ अलग होगा. इट मीन्स दैट इट कंप्लीटली गोज विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अभी देन सेकंड थिंग, द SI यूनिट ऑफ फोर्स. हमें पता है फोर्स का SI यूनिट क्या है, न्यूटन है इटसेल्फ. तो वेट का भी SI यूनिट क्या होगा, इट वुड बी न्यूटन. द SI यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन. अभी जब हमें पता है
फोर्स जो है उसके साथ जब हम ग्रेविटी की बात करते हैं तो दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसको डायरेक्शन है मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और डायरेक्शन कैसी होती है इसकी हमेशा, द डायरेक्शन ऑफ वेट इज ऑलवेज डाउनवर्ड, वाई, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्यों? बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स द सेंटर है। तो सेम उसी तरह से वेक्टर क्वांटिटी है और उसका वेट के ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट होती है दैट इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो द डायरेक्शन ऑफ वेट इज ऑल्सो इन डाउनवर्ड पोजिशन। सो नाउ वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वी हैव टॉक्ड अबाउट वेट इज प्रोपोर्शनल। वेट किसको प्रोपोर्शनल है? वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जितना बढ़ेगा उतना वेट बढ़ेगा, मास जितना कम होगा उतना वेट भी कम होगा। देन इट इज ऑल्सो वेराइज विद वैल्यू ऑफ जी। वेट वेराइज विद वैल्यू ऑफ जी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी की वैल्यू जहां जहां जितनी बार चेंज होगी उतनी बार वेट का वैल्यू चेंज होगा। मतलब मान लो सन के ऊपर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगी, एंड इफ देयर इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन लार्ज अमाउंट सो सन के ऊपर बॉडी का वेट ज़्यादा होगा। मान लो अर्थ के ऊपर बॉडी का वेट समथिंग है, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, वी विल टॉक अबाउट इन लेटर टॉपिक। बट उसी ऑब्जेक्ट को अगर मैं मून पे ले जाता हूं तो मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होता है एंड देयरफॉर द वेट ऑन द मून आल्सो चेंजेस। सो ग्रेविटी चेंजेस ऑन एवरी प्लैनेट, एज वी नो दैट ग्रेविटी चेंजेस ऑन एवरी प्लैनेट और एट डिफरेंट हाइट और डिफरेंट सरफेस और वेर एवर द ग्रेविटी चेंजेस, जहां जहां ग्रेविटी चेंज होता है वहां वहां पे वैल्यू ऑफ जी जैसे भी चेंज होगा एट द टाइम वेट विल ऑल्सो चेंज। सो इफ सपोज दैट एज वी नो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ ग्रेविटी इज जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सेंटर इज जीरो, तो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ द अर्थ वुड बी जीरो। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप अर्थ के सेंटर पे ले जाके मेजर करते हो तो इट्स वेट वुड बी जीरो। दिस वेयर द कंसेप्ट्स अबाउट वेट एंड मास। अभी मान लो जब हम बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि 12 kg ऑफ वेट, आपको पूछते हैं आपका वेट कितना है तो आप बताते हो कि 12 kg। तो वेट हम कॉलोनियल लैंग्वेज है हमारी, वो हम वहाँ पे वेट की नहीं बट एग्जैक्टली किसकी बात कर रहे हैं, मास की बात कर रहे हैं। लेकिन जब साइंटिफिकली हमें बताना है, देखो जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मास, व्हेन वी टॉक अबाउट मास, आपका मास जब हम बता रहे हैं तो वी कॉल इट एज, कॉलोनियल लैंग्वेज में हम वेट बोलते हैं दैट इज 12 kg। लेकिन साइंटिफिकली अगर मैं इस वेट को कैलकुलेट करूं तो W इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, दैट इज 12 इंटू आपकी ग्रेविटी कितनी है आपके ऊपर 9.8 न्यूटन है। तो इसका जो आप कैलकुलेशन निकालोगे 12 8 जा 96, कैरी 9 आ गए, 12 9 जा 144 प्लस 9 153, 153.6 न्यूटन, दिस वुड बी योर वेट। अभी सेम थिंग आपके बुक में भी एग्जाम्पल दिया है अबाउट द वेट ऑफ अ पर्सन। जब हम ग्रेविटेशनल मास की बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, सपोज मान लो हम राजू, कोई पर्सन है, एक पर्सन है जिसका वेट क्या होगा, सपोज दिस पर्सन इज देयर राजू, इस राजू का वेट है 50 kg। राजू का वेट कितना है बताया गया हमें 50 kg, बट ये 50 kg एक्चुअल क्या होता है, उसका मास होता है। व्हाट इज दैट, मास। जब हम वेट के टर्म्स में कैलकुलेट करते हैं दैट इज 50 इंटू 9.8, जो भी मिलेगा हमें फिगर यहाँ पे दैट वुड बी इन न्यूटन्स, दैट इज हिज वेट। वो क्या होगा, उसका वेट होगा वहाँ पे दिया गया। इट मीन्स दैट व्हेन वी टॉक अबाउट वेट ऑफ 1 kg मास, जब हम वेट ऑफ 1 kg मास की बात करते हैं, वेट ऑफ 1 kg मास, तो हम वहाँ पे लिख सकते हैं 1 इंटू 9.8 दैट इज 9.8 न्यूटन। तो एक रिलेशन हमें मिलेगा हमें वहाँ पे, दैट इज 1 kg मास इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। 1 kg मास इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 9.8 न्यूटन। ये 9.8 न्यूटन क्या है, हम लोगों का वेट है। क्या है, वेट। होपिंग दैट यू ऑल आर क्लियर विद दिस थिंग्स। अभी आप सब लोग इस थिंग्स से क्लियर हो गए ऐसा सोचता हूँ। एंड देन लेट अस स्टॉप आवर टुडेज लेक्चर हियर, बिकॉज कल के पोर्शन में जो हमें देखना है, फॉर दैट वी विल स्टडी टुमारो। सो आज एक ही दिन में ज़्यादा ओवरडोज नहीं करूँगा। गैदरिंग अप इट, हमने आज क्या देखा,
अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्रेविटी के अलॉन्ग किस तरह से चेंज होते हैं, और व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट इन डिटेल्स। अभी मुझे तो नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। इफ स्टिल यू आर हैविंग द डाउट्स यू मे कमेंट इट इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट लेक्चर शुरू होने से पहले आप आपके ऐप पे चैट सेक्शन में वहाँ पे चैट डेस्क पे आपके डाउट्स डाल दो। नेक्स्ट लेक्चर में आपके डाउट्स सॉल्व किए जाएंगे। सो होपिंग अ वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।